ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਫੜੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ 500 ਯੂਰੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ 3 ਦਫਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜ਼ਜ਼ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਯੂਰੋ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਸਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਰੇ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੋਡ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਸਿਆ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਅਬੀ ਨਾਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਆਪੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਪੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਆਪੋ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਸਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਗਲਾਂ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾइल ने बड़ा बेइज्जत किया, हम जीत गए, अंबर नजीर छुपा हुआ है, अंबर नजीर अंदर बैठा हुआ है, तुम अंबर नजीर के लटके हुए हो। ओ भाई, ਅਸੀਂ अंबर नजीर के लटके हुए हैं या जो भी हैं, आप क्या हो? ठीक है, ਕਦੇ ਮੀਆਂ 49 ਦੀ ਪੁਸ਼ਲ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਦੇ ਰਾਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਲ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਲ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੱਢ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ, ਦੂਏ ਦਾ ਮੌਕਫ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰੋਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਮਾਤ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੌਂਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉਕਰਾਇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਬੜੀ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲੀਵ, ਉਹ 157 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਰਬਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਨੁਸਰਬਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1122 ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਇਨ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਰੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਇਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਛਲ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਨਸਿਆ, ਇੰਜ ਨਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕहीं ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਖਾਨ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਡੀਓ ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸੌਰੀ ਆਡੀਓ ਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਹਨੇ।
ਤਬ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਅੱਜ ਮਲਕ ਤਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪੰਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਏ ਵੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਬਰਾਡਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਬਣੀ ਮਨੂ ਤਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਈ ਬਸ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ इमरान छोटा भाई है यार जी आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी यार आ रही है हमेशा बैठे हैं? अमर भाई मौजूद हो तुसी हाँ जी मैं आ गया करो गल अच्छा वो फिर आप बुला लें तला साहब को अल्लाह साहब वो मैंने पूरा उसको ना वो जो पूरी वीडियो का क्लिप है जी जी तो मैंने उसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में नोट डाउन कर लिए तो मतलब बड़े क्लियर वर्ड्स हैं ताकि वो तलत भाई को भी मतलब वो बात जो है वो क्लियर हो जाए क्योंकि आपकी मेरी और तलत भाई की बात शुरू हुई थी जी 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 तो उसका मैंने वो स्क्रीनशॉट पूरा बनाया अल्लाह साहब आए ना थले मैं शेयर तो की तला साहब ने कॉल वॉल कर ले उन्हें उस टाइम वैसे वो आते हैं कम ही हैं ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ यार वो मेरे से तकरीबन है आधे पौने घंटे के फासले पे आज वैसे इरादा था उनसे मुलाकात का अच्छा विकास साहब कल जो अफान जट ने वो तलत साहब की ब्राड पे चलाई थी ऑडियो चलाई थी जिस पे आप कह रहे थे कि ये आमर वीर जो है ना माफ जा रही है तलत साहब ऑनलाइन में है जो सेंटर जी तलत साहब ऑनलाइन में है टिकटॉक पे क्या बोल रहे हैं आप हाँ जी मैं कह रहा हूँ कि उसकी आपने लास्ट जो लाइन थी उस पर गौर नहीं किया था कौन सी लास्ट लाइन में उन्होंने कहा कि and in Muslim point of view it's fiction जो अकीदा उन्होंने बयान किया ईसाइयों का कि भाई उनको सलीब तो दिया गया था लेकिन वो सलीब पे फौत नहीं हुए नहीं वो और देखिए एंड पे उन्होंने जो पंच ठीक है वो बात लेकिन उन्होंने उसमें अपना अकीदा जस्टिफाई नहीं किया ये जो वीडियो है ना ये जो आमिर साहब ने बताई थी इसमें उन्होंने अपना हाँ इसमें उन्होंने अपना अकीदा बयान किया मसला हमें था उनके अपने अकीदे का क्योंकि अपने उन्होंने अकीदे का रेफरेंस तो दे दिया कि चैप्टर 4 वर्स 157 में वही मेरा अकीदा है लेकिन वो उसको उन्होंने समझा किस तरह है वो इन्होंने इस वीडियो में बता दिया तो वो एक चीज़ जो है वो वजाहत के साथ है उसमें अगर आप सिर्फ शुरू से ले ना जैसे वो स्टार्ट में उन्होंने वही मुस्लिम का यहाँ पे दरमियान में उन्होंने बता दिया कि मुसलमानों का अकीदा ये है स्टार्ट में तो नहीं है लिंकअप नहीं है उधर लिखा हुआ है व्हाट आर वी मुस्लिम टू से द क्रिश्चियन क्लेम वो कह रहे हैं कि क्या हम मुस्लिम को कहना चाहिए क्रिश्चियंस को उनके क्लेम के बारे में फिर आगे लिखा हुआ है अल्लाह शटरिंग द बोस्ट ऑफ ज्यूइश बोस्ट वो डिफरेंट बात हो रही है नहीं मैं जो वीडियो है ना उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो खुद बयान कर रहे हैं कि वही मुस्लिम बिलीव वमा कतलूहु वमा सलबूहु ठीक है ना हाँ वो वीडियो भी है लेकिन देखें तो उसका मतलब ये है कि वही मुस्लिम में जो है अहमद दिदात साहब भी मौजूद है और मुसलमान भी आ गए ठीक है हैदर साहब हाँ जी उस वीडियो में उनके अपने वो कहते हैं वही मुस्लिम बिलीव्स वो आयत भी पेश करते हैं लेकिन उस आयत में उन्हें किस तरह से उस बात की समझ आई है या वो किस तरह से ले रहे हैं वो उन्होंने नहीं बताया अब वही मुस्लिम पे फिर एतराज़ खड़ा हो जाता है ना कि मुस्लिम किस तरह बिलीव करते हैं हाँ लेकिन ये कि उन्होंने ये बयान कर दिया इसमें ये जो एंड पे आपको ऑडियो वीडियो सुनाई गई है हाँ ये वाली वीडियो में उन्होंने क्लियर कट बात की ये सीधी सीधी बात है अच्छा मैंने उनको कॉल किया कहते हैं मैं आता हूँ आ रहे हैं पता नहीं बस आ जाए मसला नहीं है मैं भी फ्री हो गया हूँ कॉल मैंने किया मैंने उनको बताया ली कि ब्रॉड पे आ जाए मैं उन्होंने शेयर की थी ब्रांड पे
altro tutti monito finito? Va bene, va bene. वो आ जाएंगे तो मैं फिर वो पैराग्राफ पूरा जो है वो पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने मतलब हर 2-3 सेकंड के बाद रोक के तो एक एक वर्ड उसका कैप्चर किया है, हाँ जी। फिर उसकी मैंने ट्रांसलेशन भी पूरी लिखी है। वो भगवान साहब ने बड़ा साथ तावन किया है, उन्होंने यानी वीडियो भी एक एक फिक्रा करके सुनवाया है, खुद अपनी जुबान में भी सुनवाया है, फिर हाँ, वीडियो उन्होंने ग्रुप में भी उन्होंने शेयर की है। हाँ जी। तो मैं ये भी देखना चाह रहा था कि जो औरत उनसे क्वेश्चन कर रही है वो क्वेश्चन कर क्या रही है। हाँ थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ी उसकी आवाज में गूंज है, ज्यादा साफ नहीं, लेकिन समझ आ गई कि वो क्या पूछ रही है। नहीं, लेकिन जो उन्होंने ग्रुप में शेयर की थी वो बिल्कुल साफ है, उसमें इवन नीचे वो इंग्लिश भी लिखी हुई है। हाँ, उस औरत की भी इंग्लिश बिल्कुल लिखी हुई है। औरत की भी इंग्लिश लिखी है, आगे से जो अहमद दीदार साहब जवाब देते हैं वो भी लिखा हुआ है। अब वो तो आ नहीं रही है, जवाब साहब आए हैं शायद, इनको तब तक ऊपर बुला लेते हैं अगर आ जाए तो। पता नहीं, तलत साहब कहते हैं मैं आ रहा हूँ। आ जाएंगे। आमिर भाई मैं जगह खाली कर रहा हूँ, आप एक जगह उनके लिए खाली रखें। जगह हाल ही है मनोज इमरान। अच्छा अमर भाई एक छोटा सा सवाल कर सकता बनी साहब साहब करो अगर ये गल इसी मौजू पे कोई ऐत कर लिया जो इसे मौजू थे, लेकिन उन्होंने चीज की थी कि हालांकि वादा तौर पर लिखा है कि वो ही मुस्लिम भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद के मुताबिक वो भी तर्जमा लेंगे। मैं इन्हां कोलों पुछना चाहना वा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਬਲੀਵ ਕੀ। नहीं, वो तो मैं मीर साहब ने पहले दिन ही किया सी कि वो मीर पूरी स्टेटमेंट पढ़े ना, वही मुस्लिम बिलीव्स आगे उन्होंने क्या बोला। कभी उन्होंने 40 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਤ ਨੇ I personally believe apart from the other Muslims। बहरहाल ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਵਹਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ। अपार्ट नहीं लिखा, जो उनकी बुक में लिखा हुआ है वो उन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया कि माई बिलीफ इज। हाँ मतलब दीगर मुसलमानों नालों उन्होंने अपने आप ਨੂੰ अलग कदे भी नहीं किया है हमेशा, या आई बिलीव थे या मुस्लिम बिलीव क्या। हाँ, 3 तरह से वर्ड आते हैं, दा मुस्लिम, वही मुस्लिम एंड माई बिलीफ। हाँ जी। नहीं, बहुत सारे मैंने इस तरह के और भी उनके वीडियो क्लिप्स काट के रखे हुए हैं। रात वैसे मैंने भी सर्च आउट किया है उनकी काफ़ी सारी वीडियोस, लेकिन मेरे सामने ये वाली वीडियो नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। हालांकि मैंने हाइड कर दी थी यूट्यूब से, पता नहीं ये वीडियो क्यों नहीं आई, मुझे नहीं समझ आई। मैंने फिर दोबारा इसको चेक किया वेरीफाई करने के लिए, मुझे फिर दोबारा नहीं मिली यूट्यूब से। ये पता नहीं उसने कहाँ से निकाली है, शायद यूट्यूब से निकाली है, मेरी सर्चिंग में नहीं आ रही। तारक चौहान साहब आओ जी, तो वीडियो सुनाइए। क्रोसी ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जी जी तवज्जो है ना। जी बिल्कुल। लो फिर सुनो। आ गया तलब भाई। डॉक्टर अहमद दिदात साहब कोलों एक औरत सवाल कर रही है कि जदों ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे तुसी कहंदे हो कि फौत नहीं होए ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼। Do you believe that he actually lived? So then what happened to Jesus if he lived? If he did not die, if he lived? Quranic ayah to read to you. The last expression I said was Bal rafahu Allah ilayh, but Allah took him up to himself. We Muslims believe that God Almighty took him up, saved him. People on the cross were absolutely naked.
They didn't respect you to put a little loincloth around the man. The messenger of God, you say the son of God, naked and bare before the world, flies buzzing around him. No. God Almighty didn't allow that to happen to his servant, his messenger, Jesus. God saved him and took him up. And I say, he's coming back to just you. जी सुभान अल्लाह। जी तल्ला साहब आ गए हो, पहुंच गए हो? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਖੜਾਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਬल्कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी स्क्रीन बड़ी करें आप आमिर साहब वीडियो चला दीजिएगा मैं उसके समझ सामने नहीं आ रही, लेकिन वो कह के रहे ने मैं बता देता हूँ क्या कह रहे हो। गैलरी अच्छा, ये बेसिकली उनसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है, ऊपर मैंने लिखा है क्वेश्चन आस्क्ड बाय द लेडी। अब ये ऊपर वाला पूरा सवाल है, उसके नीचे उर्दू में ट्रांसलेशन मैंने लिखी है, फिर नीचे है आंसर्ड बाय अहमद दीदात कि अहमद दीदात साहब ने उसका जवाब क्या दिया है। अभी उर्दू में पढ़ूँ या इंग्लिश में पढ़ूँ ये मुझे बता दें। तला साहब बताएं, पहले इंग्लिश पढ़ दूँ फिर उर्दू पढ़ दूँ? हाँ इंग्लिश मैंने सही समझी चाहती है, इंग्लिश ही पढ़ो। हेलो एक मिनट है जो जरा ना अली वड्डी हाँ। करता स्क्रीन मैसेज म्यूट कर दे अली। आवाज नहीं आ रही थोड़ी। अच्छा अच्छा, तला साहब वैसे इंग्लिश तो नहीं उत्तर लंगड़ी है, चलो उर्दू पढ़ देना। अच्छा, ये वो जो औरत है वो सवाल उनसे कर रही है, हू बहू वही वर्ड लिखे हुए हैं जो उन्होंने वीडियो में बयान किए। इसमें लिखा है कुरान पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के मेराज पर यकीन रखते हैं? क्या आपको यकीन है कि वो हकीकत में ज़िंदा थे? तो ईसा अलैहिस्सलाम का क्या हुआ? अगर वो ज़िंदा रहे तो मरे नहीं, तो कुरान की आयत है कि मैंने आपको आखिरी जुमला पढ़ कर सुनाया, वो जो मैं ने कहा था कि लेकिन अल्लाह ने उसे अपने पास लिया, मतलब उठा लिया, पास लिया। अब नीचे जो है अहमद दीदात साहब का जवाब है। एक मिनट, ठीक है, आ रही है नज़र? इधर अब वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे अपने पास लिया। हम मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह ताला ने उसे उठाकर उस ज़िल्लत अमेज़ मौत और सलीब की बरहंगी से बचा लिया। दोनों बातें कर दी कि ज़िल्लत अमेज़ मौत और सलीब की बरहंगी से बचा लिया, क्योंकि सलीब पर चढ़े लोग बिल्कुल नंगे थे और वो आपका एहतराम नहीं करते थे कि आदमी के गिर्द थोड़ा सा जो है वो लंगड़ा, इसको कहते हैं कॉइन क्लॉथ, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉइन क्लॉथ,
मतलब वो कपड़ा हल्का सा डालें। खुदा का रसूल तुम कहते हो कि खुदा का बेटा नंगा हो और दुनिया को बर्दाश्त करो, तुम जानते हो कि उसके इर्द गिर्द फाइलें गूंज रही हैं। नहीं, किसी खुदा ने अपने बंदे के साथ ऐसा नहीं होने दिया और उसे उठा लिया, और मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ़ तुम्हारे पास वापस आ रहा है और वो करने के लिए जो तुम जानते हो कि हम मुसलमान मानते हैं और दावा करते हैं कि इस्लाम मेरे लिए खुदा की तमाम वही की तकमील है और तुम्हारी हकीकी रहनुमाई। जी, ये बात है उनकी। मतलब वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये बात अपना मौक़िफ़ दे दिया कि हम मुसलमानों का मानना है। जमा में वो बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसे उठा कर इस ज़िल्लत अबेस मौत कि जो है वमा कतलूहु, और सलीब की बरहंगी से बचा लिया, वमा सलबूहु, बचा लिया, क्योंकि सलीब पर चढ़े लोग बिल्कुल नंगे होते हैं और वो आपका एहतराम नहीं करते थे कि आदमी के गिर्द थोड़ा सा जो है वो लंगर डालें। खुदा का रसूल तुम कहते हो कि खुदा का बेटा नंगा हो और तुम दुनिया को बर्दाश्त करो, तुम जानते हो कि इसके इर्द गिर्द फाइलें गूंज रही हैं, और नहीं, किसी खुदा ने अपने बंदे के साथ ऐसा नहीं होने दिया। जी, ये स्टेटमेंट थी जो उनकी, ये वीडियो आमिर साहब ने मुझे पेश की थी। ये उनका जवाब इंग्लिश में पढ़ के सुनाई, इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ के सुना। But Allah took him up himself. We Muslims believe that the God Almighty took him up, saved him from that ignoble death and nakedness of the cross. Because the people on the cross were absolutely naked, they didn't respect you to put a little loincloth around the man, the messenger of God, you say, the son of God, naked, and bear the world, you know, flies buzzing around him. No, God Almighty didn't allow that to happen to his servant him and took him up, and I say he is coming back to just you. He is coming back to do what you know. वो Muslim believe and claim that Islam is the culmination and the fulfillment of all of God's revelation. To me, all true guidance all. जी, वो समझ पूरी नहीं आई, लेकिन इतनी बात तो समझ आ गई कि उनका ये बिलीव था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया ही नहीं गया और खुदा ने उनको उठा लिया। ये तो समझ आ गई। फिर यही बात असल थी जो मीर लतीफ़ साहब ने कही थी कि उनका ये अकीदा नहीं था, तो यहाँ से उनका अकीदा ज़ाहिर हो गया। मैं आप दोबारा ये बड़ी करके वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ, आपको अल्फाज शायद साफ सुनाई देंगे। God Almighty didn't allow that to happen to his servant, his messenger, Jesus. God saved him and took him to call him Lord. He is not. Hi guys, you're welcome. Well, the last two questions, no, Krishna. Last two questions, this lady here and one more from this side, if there is. Only last two questions. You must appreciate that this is an old machine, 78-year-old, and I have come across, those time barriers, please, have a little mercy on me. Not I'm trying to run away, but this, after all, the body, there's a limit to what it can take. Last two questions, this lady. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 78 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਖਤੂਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ समझ आ गई। हाँ जी, लेक्चर खत्म हो गया तो उन सवाल जवाब का सेशन चल रहा है। ए खतून सवाल करने लगी, सवाल भी समझ आएगा इंशाल्लाह तो जवाब। Thank you, my sister. Please. I thank you that I have the privilege to be here tonight to listen to you. I have read the Quran. You've stimulated me. Perhaps I should read the Quran. But I would like to know what you believe with the ascension of Jesus. Do you believe that he actually lived? So then what happened to Jesus if he lived? If he did not die, if he lived? No, the Quranic ayat. ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਪਨ ਟੂ ਜੀਸਸ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਉਦਾਸ। Verse that I read to you, the last expression I said was, "Bal rafahu Allahu ilayhi," but Allah took him up to Himself. We Muslims believe that God Almighty took him up, saved him from that ignoble death and nakedness of the cross, because the people on the cross were absolutely naked. They didn't respect you to put a little loincloth around the man. The messenger of God, you say the Son of God, naked and bare before the world, flies buzzing around him. No. God Almighty didn't allow that to happen to His servant, His messenger, Jesus. God saved him and took him up. And I say, He's coming back to judge you. He is coming back. To do what? We Muslims, we believe and we claim that Islam is the culmination, the fulfillment of all of God's revelation to man. All guidance is given to us. We don't have to learn anything new from Jesus or Moses or Muhammad anymore. Whatever God wanted to give, He's given it to us. So what is Jesus coming to do? I says, no, He's coming along to rectify you. And He's telling you in the Gospel of St. Matthew, He says, many will say to me on that day, in His second coming, on His return, and many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in Thy name, and in Thy name cast out devils, and in Thy name do many mighty works? They're going to ask Jesus, who did do all these things? We build hospitals, orphanages, and we look after the Aborigines, and we look after the Maoris, and we look after the Indians. Yes, all these things we did. We educated all these fools, we civilized them, we cultured them, we did all the things. So did we not prophesy in Thy name, and in Thy name cast out devils, and in Thy name do many mighty works? What does Jesus say to that? He said, I never knew you. He said, depart from me, ye that work iniquity. You are evildoers, you are evil mongers. Who is it? You who are working in the name of Christ, looking after the lepers, looking after orphans. Mother Teresa, wonderful work she's doing. My God, I tell you. I bow my head down out of respect for her. All the wonderful things you people are doing. The way you look after the animals. Animal conservation to preserve life. Fantastic things you are doing. But for human beings as well. What you are doing. And that's what you're going to say. To Jesus. I'm asking the Christians. Answer. You know why? Because you call him Lord. He is not your Lord. He is not your God. That's the reason. That is the reason. He's telling you, come, I'll teach you how to pray, and pray like this, and He puts the words in your mouth. Like a little baby, like a little child, pray like this. Oh, our Father, which art in heaven, our Father, art in heaven. Or putting Judas, because Judas was in the group. He's the father of everybody, the sinner and the saint. He's the creator, Lord, cherishes. Call him Father, okay. Oh, our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Where did we say the Father of Jesus Christ in heaven? Or Jesus Christ, my Lord in heaven? Where? He said, this is how you pray. But you have forgotten that. You're worshipping Him instead of worshipping the Father. Did you say, the lady, did you say you got the Quran? You have a Quran? Yes, ma'am. I think now I'm understanding from the Quran perspective about the crucifixion of Jesus, because they don't believe in the crucifixion of Jesus. They said Jesus did not die, but was taken up. The Bible, it is believed that Jesus died and rose, on the third day. And the way the woman asked the question was really, really beautiful. It's like she's
he gets to learn more about ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਯਾਰ। नहीं बेहतरीन सब कुछ पढ़िया जा रहा है, सब बेहतरीन नजर आ रहे हैं। बड़ी स्क्रीन पे मतलब तला साहब से भी पूछ लेना अगर उनको नहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो। है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तर्जुमा करके बताएं ना, आप बताएं उनको तर्जुमा करके। हम सिर्फ फाइल्स नहीं, फ्लाइज बजल्ड लिखा वो कह रहे ना फाइल। मतलब मैं पढ़ के सुनाना जेडे लफ्ज लिखे जेडे उन्हें बोले सन। सुनो लफ्ज। The last expression I said was bar rafa'ahu Allahu ilayhi। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਅੱਲਾਹ took him to himself। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। we Muslims believe that God Almighty took him up, saved him from ignoble death and nakedness of the cross। हम मुसलमान ये ईमान रखते हैं कि गॉड अलमाइटी ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ऊपर उठा लिया, महफूज कर लिया उनको उस इग्नोबल डेथ यानी बेयारो मददगार मौत से, और नेकेडनेस ऑफ द क्रॉस सलीब के नंगपन से। सलीब के नेकेडनेस होंदा है नंगापन। अगे वो वजाहत करते हैं नेकेडनेस की होंदा है। The people on the cross were absolutely naked। क्रॉस दे उत्ते बंदे जड़े ने मुकम्मल तौर पर नेकेड होते हैं, यानी बरहना होते हैं, नंगे होते हैं। They didn't respect you to put a little line across the man, around the man। यानी वो आपको इजाज़त नहीं देते, वो आपका इतना भी एहतराम नहीं करते कि आप कोई कपड़े का छोटा सा पीस अपने जिस्म के गिर्द बांध लें, यानी अपने जिस्म को ढांप लें। मिसिंग ऑफ द गॉड, जिसका मतलब है कि जैसे आपका कोई खुदा पीछे है ही नहीं, कोई आपकी रखवाली कर ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा। यू सेड द सन ऑफ गॉड नेकेड, तुम कहते हो कि खुदा का बेटा नंगा था, एंड बेयर्ड बिफोर द वर्ल्ड, और दुनिया भर के सामने नंगा था। यू से फ्लाइज बजल्ड अराउंड हिम, तुम कहते हो कि मक्खियां उसके ऊपर भिन भिना रही थी। God Almighty did not allow it to happen to his servant। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये अपने गुलाम से, अपने नौकर से, अपने बंदे से होने नहीं दिया, उसके साथ ये काम होने नहीं दिया। His messenger Jesus, जो उनका रसूल है मसीह इब्ने मरियम, God saved him and took him up। अल्लाह ताला ने उनको इससे महफूज रखा और उठा लिया। एंड आई से, और मैं कहता हूँ, ही इज कमिंग बैक टू जस्ट यू, कि वो वापस आ रहे हैं तुम्हें सही करने के लिए, तुम्हें रेक्टिफाई करने के लिए। ए जी जेडे उन्होंने लफ्ज बोले सन मैं लिख के रखे सन, महीना डेढ़ होया है, मैं मीर साहब तैयार करके रखे सी सबक, लेकिन अज फिर लोड़ पै गई तो मैं आख्या भी वो ही ना आवे। उन्हें आख्या भी है घर मरग होई है तो कोई हनेरा सी तो बंदा कोई नहीं सी, फूड़ी पई सी तो उन्हें आख्या कोई बत्ती बुत्ती कोई नहीं, बंदा मरिया पिया तो बत्ती बाल के, तो उन्हें आख्या बत्ती तो है पर किसी चंगी माड़ी बात रखी है। असा हवाले तो साल के रखे ने, तो मैं आख्या हुण असीं इस तो बाद चंगी माड़ी बात रखने ने, असीं मलक साहब नूं, असीं वकास साहब नूं, असीं नियो साहब नूं, इन्हां नूं ते देने ने हवाले। यार आपने ये कल नहीं दिया मुझे इस बात का है कि आपने मुझे कल क्यों नहीं दिया ये हवाला। मैं सो गया था रात को, मुझे नहीं पता मेरे बाद आप क्या क्या बोलते रहे। आपके बाद बहुत कुछ हुआ है। मैं बोलना चाहता था, मैं आया, मैंने कहा तलक साहब मुझे 20 सेकंड दे, तलक साहब ने कहा खामोश, मैं फिर चला गया। मैं कहा 10 बजे के बाद बंद कर देना मोबाइल। जी अब आपने पूरा ट्रांसलेशन भी पढ़ लिया है, तलक साहब और आप दोनों बारी बारी इस पे राय दें। आमिर साहब अगे दे चुके हैं, तुसी अल्लाह दा नाम ने रिकॉर्ड कर लो, साडी हर बराड़ ते सन ना बुलाओ, रिकॉर्ड करके रख लो को
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। तला साहब देखिए आमिर नज़ीर साहब, ये बात तो सामने आ गई है ना यार। अब तक जितने मामलात सामने आए हैं उनके सामने रखने के बाद कि वो जो दिलदार साहब थे, जिनको माशाल्लाह अपनी लाइफ में शायद इतनी मशहूरी नहीं मिली जितनी अब आप लोगों ने और हमने उन्हें दे दी है, तो उनका अक़ीदा यही था कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनको सलीब नहीं दी गई। उनके इस बयान से ये ज़ाहिर होता है, ये लफ्ज़ नहीं है लेकिन ये बयान से ज़ाहिर होता है कि उनके अक़ीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दी गई और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। ये उनका अक़ीदा था, इस बयान से ये ज़ाहिर होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस बयान से आगे कोई अगर कोई चीज़ आती है तो वो और होगी, तो बंदे ही डाउट आ जाएगा। नहीं वो ठीक है ना, इतनी बात है, इतने में वो बात साफ ज़ाहिर है। हाँ क्लियर हो गई, मतलब बात है तो बिल्कुल वाज़ेह है, उनका जो अकीदा है वो सामने आ गया है कि बेसिकली वो समझते क्या है उस आयत के मुताबिक। तो वो चीज़ अब बाकी तारिक भाई अभी बैठे हैं, तारिक भाई अपनी भी राय दे दें। मैं तो हैरान हूँ, इतना बड़ा आलम होकर जो आप लोगों ने समझा है, इतने बड़े आलम थे, तो अकीदा उनका ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर है। लेकिन चलो वो अलग है, वो अकीदा सही था या खराब था वो बहस नहीं हमारी। आप ये बताएं ये जो दावा है इसका क्या करना है आपने अब हमारे साथ? मैं दावा करना, मेरे प्यो ने किया भी दावा है कि हज़रत मसीह को सलीब तो दी गई थी लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सलीब पर मरने नहीं दिया। यही अकीदा मिर्ज़ा साहब का है। लतीफ़ साहब जो बात आपने कही है कि डॉक्टर अहमद दिदात का ये अकीदा था कि मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब तो दी गई लेकिन सलीब पर उनको मौत नहीं आई, ये बात डॉक्टर अहमद दिदात की साबित कर दें तो ये 500 यूरो आपका इनाम है। 500 यूरो आपको इनाम दिया जाएगा, जो बात आपने कही है ये साबित कर दें। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो ये 500 यूरो जो है जो वो लहरा रहे हैं वो अपने कज़न जो हैं वो जानते हैं, उनको मेरे शहर में वो रहते हैं, उनके पास जमा करवा दें और मुझे वो उनका फ़ोन आ जाएगा तो मैं वो हवाले सारे नशर भी कर दूंगा, आपको भिजवा भी दूंगा और इंतज़ार कर रहा हूँ कि आमिर नज़ीर साहब कब वो 500 यूरो भिजवाते हैं और मैं उनको हवाले भिजवाऊंगा। सारी दुनिया ये सुनेगी कि कौन झूठा है। तो फिर वो आपसे ज्यादा ही वो देंगे, कुछ और ज्यादा देंगे, नहीं देंगे तो मैं 100 ज्यादा दे दूंगा। 600 यूरो वो देंगे? हाँ नहीं, मैं 100 ज्यादा दे दूंगा उससे, मतलब 500 मैं आपको दे दूंगा। 600 यूरो आप देंगे अगर उन्होंने ना हवाला दिया? हाँ जी, उन्होंने तो कहा है, मैं मुझे बल्कि भेजे भी थे उन्होंने हवाले। इसका जी पूरा ये है पूरा मुकदमा कि एक तो हमें मतलब 1 महीना हो गया है, मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, वो स्वीडन में थे आपके मुल्क में, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मीर साहब को फ़ोन कर देता हूँ। उन्होंने मीर साहब को मैसेज किया कि आमिर नज़ीर के पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, आपके दरमियान जो भी बात चल रही है आप उसको फ़ाइनल कर लें, अगर आमिर को देने आए तो मैं दे दूँगा आमिर के 500 यूरो मेरे पास पड़े हुए हैं। बहरहाल एक बात तो मीर लतीफ़ साहब की बिल्कुल सच निकली कि दुनिया देखेगी कौन झूठा है, तो दुनिया ने देख लिया कि मीर लतीफ़ साहब ने झूठ बोला था। ये बात उन्होंने दुरुस्त कही एक बात आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पर किसी मज़हब किसी भी जमात की ना हार हुई है ना जीत हुई है, ये 2 बंदों के ज़ाती फैसले थे। मीर साहब का जो ये फरमान था कि मैं ये साबित करूँगा, वो नहीं साबित कर सके फ़िलहाल। आगे मुझे नहीं पता, उनके पास शायद हवाले हों, वहाँ से साबित हो जाए, लेकिन फ़िलहाल वो साबित नहीं कर सके। लेकिन इसमें किसी जमात किसी मज़हब की हार जीत नहीं है, 2 आदमियों का इनफरादी तौर पर ये बात थी। एक बंदा फ़िलहाल गलत साबित हुआ, एक बंदा ठीक साबित हुआ है। झूठ और बेईमानी के लफ्ज़ अपनी क्या ना अना के लिए, अपनी मुखालफत के लिए ऐसे लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। नहीं कोई नहीं, चले जो भी है। ये तो मीर लतीफ़ साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, हम तो नहीं वो वो बात कर करते रहे, लेकिन आपका काम नहीं है।
वो कोई बंदा कहता है ये बाद में आके मैं ना साबित करा तो मैं कुत्ते का पुत्र होऊंगा, दूसरे बंदे का काम नहीं है उसको कहना तू कुत्ते का पुत्र। ये बातें आमिर भाई कमेंट्स ओपन करें, नहीं मुमान साहब कह रहे कमेंट्स ओपन करें। कमेंट्स ओपन करो भाई। अली छोटी कर दो आमिर साहब इजाजत है, ओवैस भाई, वकास भाई। ठीक है, वो आपको वकास साहब ने ये देना था फाइनल करके कि भाई ये हमारा अब डिसीजन है, बाकी ठीक है आप अगर बिजी हैं तो कोई मसला नहीं है। सारे भाई को अस्सलाम वालेकुम। एक लतीफा जाते देखिए अभी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अब तक जो दलाइल जो तला साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक की है कि अब जब दो दलाइल आए हैं, जो रात दलाइल आए थे, फिर उसके बाद उससे बढ़ के एक डोमिनेंट और दलाइल आ गया जिसमें ये वजाहत आ गई हमारे पास। अब इससे बढ़ के अगर मीर साहब के पास कोई होंगे तो हम ज़रूर उनका भी मौक़िफ़ सुनेंगे। बिल्कुल, तो उनका इस पे क्या मौक़िफ़ है, उनके पास कौन से ऐसे दलाइल हैं जो कि उनकी इसी बातों को रद्द कर रहे हैं। हाँ, अब तो क़यामत दीदात साहब की वो तरदीद ही है अगर वो पेश कर दें तो। हाँ वही ना, तो मतलब कोई ऐसे अल्फाज उनके होंगे जिससे हमें ये, जैसे हमें इससे ये मतलब वाज़ेह तौर पे मिल गया उनका अकीदा कि ना उनको सलीब दी गई ना उनका कत्ल हुआ। इसी तरह के अगर कोई और उनके अल्फाज होंगे तो उसको भी हम ज़रूर देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर भी जो राय बनती होगी हम बता देंगे। हाँ, वो लतीफ़ा मैंने ये सुनाना था कि नासिर भट्ट साहब कह रहे थे अभी उनकी बरात पे बैठे हुए कि आमर ने टोटे जोड़े हैं। ये जो वीडियो आमर ने सुनाई है ना, ये इसने टोटे जोड़े हैं, ये मेरे सामने कसम खाए आके और कहे कि इसने टोटे नहीं जोड़े। ये मलक इमरान गया था तंग करने, तो मैंने कहा भाई मलक इमरान दोबारा जाएं वापस और उनको कहें, तो मैं हलफ देता हूँ मैंने तो बड़ा इल्मी रद्द किया है उन्होंने। मैं टोटे नहीं जोड़े, मैं हलफ दे देना मैं टोटे नहीं जोड़े, तुसी मैंने बदले 600 यूरो दे दोगे। मैं क्या पता करके 600 तो तलत मलक साहब दे बात देंगे। ये है कि अगर आमिर साहब ने टोटे जोड़े हैं तो आप पूरी वीडियो या ऑडियो लगा दो भाई वो टोटे हैं, असल में ये वाली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त बात की है कि दलील से झूठा साबित करो बजाय इसके कि कसमें लो भाई, कसम दो भाई तुमने टोटे नहीं जोड़े। क्या हो गया यार इनका। ठीक है, अल्लाह दे वाले, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी इजाजत दें आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कर देती है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का अल्लाह बहुत शुक्रिया ऊपर लेने के लिए। जी वकास साहब आपका शुक्रिया। साहब नीचे हैं जी 139 साहब, उनको ले आओ। आ जाओ जी, ले लो जी जिन्हों ले। तार 139 जरूर लवो इन्हां नु, इन्हां सुन ली अगर गल सारी ते इन्हां जरूर लवो। गालां कड्डणगे जुत्ते यार। नहीं ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣ ਆਏ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਸੀ। करता जी, मैं तशरीफ ले आओ। ताहिर साहब मैं इनवाइट करता, आ जाओ। अच्छा, वो वकास भाई कह रहे थे कि अब वो इंतज़ार करेंगे कि मीर लतीफ़ साहब जो है ना वो इनके मुतज़ाद को है वो अकीदा पेश करेंगे। यानी कि अब होगा ये कि अहमद दीदात साहब का मुकम्मल अकीदा जो है ना वो पेश हो चुका है। अब मीर लतीफ़ साहब अहमद दीदात साहब से इनका इनकार दिखाएंगे कि खुद जो है अहमद दीदात साहब वो अपने इस अकीदे की तरदीद करेंगे। हाँ, यानी अपनी इस बात की वो कहीं तरदीद करते हुए दिखाई देंगे। अगर कहीं उन्होंने रजू किया हुआ तो हाँ जी, रजू दिखाएंगे, ये असल पॉइंट। अब वो रजू दिखाएंगे वो, बिल्कुल, तभी बात जाएगी ना। यहाँ तो साफ हो गया ना कि लड़की जो है उसने जो सवाल पूछा अकीदा का पूछा कि आप अपना अकीदा बताइए, और अहमद दीदात साहब ने अपना अकीदा बता दिया, तो अब वो इस अकीदे से रजू करेंगे। यार रजू ना करें, ये कह दें कि जहाँ जहाँ मैंने ये बात कही थी वहाँ मेरी मुराद ये थी जी। जिस तरह मिर्जा साहब ने कही जहाँ जहाँ नबी लिखा हुआ है भाई भी तेज हो गया, जल्दी ने भी गलती याद हो गई। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਜल्दी ਬੱਲੇ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈ ਅਮਰ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम। यानी कि आप सब बातें याद होईਆਂ ने। नहीं साल 6 महीने और लगे ना ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੀ याद। भाई मैं सही गया ना, मिर्जा साहब ने तो आखिया सी ना जिथे जिथे नबी लिखिया उत्थे मिटा दो, मैं क्या गलत गया। उत्थे मुहद्दिस लिख दियो।
हाँ जी हुन अहमद दीदार साहब ये गलती का अजाला पेश तेनू करेंगे। भारत याद हुई है ना, ਇਹ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਯਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰਾ ਤੁਦਾ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਕੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਲਕ ਆਸਰਾ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਟੱਲੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਟੱਲੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਤਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਇਤਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੂੰ, ਛੁਪ ਜਾਓ ਤਾਰਿਓ ਪਾ ਦਿਓ ਨੇਰ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਸਵੇਰ ਵੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਕੀ ਯਾਰ ਕਸਮੇ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਨੇ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਭਈਆ ਸਾਡਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਲੰਗ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਨੇ ਡਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਗੇਟਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਨੇ ਸਾਡਾ ਭਈਆ ਕੁੱਟਿਆ। 600 ਯੂਰੋ ਦਾ ਥੱਲੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਜ਼ਾਦ ਜਮੀਲ ਨੇ। ਯਾਰ 600 ਯੂਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਲ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 600 ਯੂਰੋ ਦਾ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮੇ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤਾਨ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਹਟਵਾਓ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਣ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਟਵਾਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹਟਵਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਬਾਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਕੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਜਤਿਹਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਤੋਂ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਜਤਿਹਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਰ ਲਓ। ਨਿੰਗਾ ਰਜੂ ਨਿੰਗਾ ਰਜੂ। वलीद साहब वालेकुम सलाम जी। आमिर भाई सब भाई कैसे हैं? ठीक हैं जी, ठीक ठाक जनाब। आमिर भाई पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पहले से ही पता था कि आपका क्या कीदा है। मैं मुगालता खा गया था। अच्छा बकर भाई दी वलीद भाई दी आवाज बड़ी मिलती है, मैं एक दफा मुगालता खा रहा ना दी आवाज ते नहीं अच्छा एक तो आमिर भाई पहले से इस चीज़ का मुझे बहुत 100% श्योर था मैं कि अहमद दीदार साहब का एक बहुत बड़े आलम है, जैसे आपने पहले भी कहा है कि एक बहुत बड़ा आलम है, मुफस्सर है, उसका ये अकीदा नहीं हो सकता कि उन्हें सलीब दी गई है। और दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि 600 यूरो तो एक छोटी सी अमाउंट है कि वो हमें मिल जाए, आपको मिल जाए। इससे बेहतर ये है कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करें लतीफ़ मीर साहब और उसमें वो माजरत करें। मैंने ये जो इल्ज़ाम लगाया है एक मुसलमानों के बहुत बड़े आलम के ऊपर, मैं इससे रुजू करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस 600 यूरो से ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके और अपने पेज पे लगाएं। ये एक ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि वो हर जगह पे बैठते हैं और हर जगह पे बैठ के और हर इंसान समझता है कि जी इनके पास बहुत ही कामिल नॉलेज है अहमदियों के अंदर। तो जब वो अपने पेज पे ये बात लगाएंगे तो वो दोबारा 10,000 दफ़ा सोचेंगे कि मैं जो बात मुसलमानों के खिलाफ करने लगा हूँ तो क्या ये बात मुझे करनी भी चाहिए, क्या इस पे मेरी कोई गिरफ्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि उनके उस इंसान को पकड़ा है जिसको वो बहुत मोतबर समझते हैं अपनी जमात के अंदर। जी थैंक यू। मोतबर तो वो इतने हैं कि कल परसों मैं किसी ब्रॉड पे गया हूँ ऐसे ही गुजरते गुजरते,
तो वो ना आपस में थोड़ा सा लड़ रहे थे और कह रहे थे कि भाई आमर ने कोई बंदा भेजा सी तो पूछा सी कि हाँ जी कर लेते हैं आप लोग, वो ये मीर साहब क्या आपका कोई नुमाइंदा है इन बंदों में जो यहाँ सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं? तो मीर साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मेरा कोई नुमाइंदा नहीं है। वो ना आपस में थोड़ा सा ना परेशान थे, तो दूसरा उसको तसल्ली दे रहा था, कह रहा था यार गल सुन, मीर साहब हमारे बुजुर्ग वो हक रखते हैं, वो हम में से किसी को भी अपना नुमाइंदा ना समझे तो भी हमें उनकी इज्जत का ख्याल है, हम उनकी इज्जत के रखवाले हैं, अगर उन पर कोई हरफ आएगा तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे वगैरह वगैरह। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मीर साहब के लिए इस हद तक सोचते हैं कि अगर वो हमें अपना नुमाइंदा ना भी समझे तो भी हम उनको अपना नुमाइंदा समझते। असल बात है कि अभी मलक तलत साहब कह रहे हैं कि ये किसी जमात की हार नहीं है, हालांकि सारी मिर्ज़ाई जमात मीर लतीफ़ साहब को अपना नुमाइंदा समझती भी है और पेश भी करती है बना के। तो फिर आप क्यों नहीं ये मानते कि हाँ फिर ये मिर्ज़ाइयों की हार हो गई ना, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा जो आलिम फाजिल बंदा है उसने एक झूठ बात की जिसको वो 5 हफ्ते से उसको वो तस्दीक भी नहीं कर सका, उसका कोई हवाला नहीं पेश कर सका, और झूठ बोलता रहा कि हवाले तो मेरे पास बेशुमार हैं, और उसके नुमाइंदे भी झूठ बोलते रहे कि जी उन्होंने तो मुझे भी हवाले भेजे हैं। अब अदील जट जो है वो भी आके कह रहा है कि जी उन्होंने तो मुझे भी हवाले भेजे हैं, वो भी कहाँ हैं हवाले, अभी तक नहीं निकले, ज़ाहिर नहीं हवाले हैं तो तभी ये बातें कर रहे हैं ना। तो ये सिर्फ मीर लतीफ़ की हार नहीं है, सारी मिर्ज़ाइयत की हार है, और ये इनके सारे जो हवाले हैं ऐसे ही होते हैं, ये बातें हवा में करते हैं, इनके पास कोई दलील नहीं होती। जितनी भी ये यहाँ पे बात होती है आप देखें बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाएंगे, कोई इक़्तिबास पेश नहीं करेंगे, कोई दलील नहीं देंगे, कोई तहरीर पेश नहीं करेंगे। तो ये यही बात है कि जब कन्फ्रंट किया जाता है कि भाई ये बात तुमने बयान की है, अब मिर्ज़ा ताहिर ने कितने कितने झूठ बोले खुदा और रसूल की कसमें खा के, हदीस में ये लिखा हुआ है, भाई कहाँ लिखा हुआ है, कोई उसका जवाब नहीं देता। तो यही असल बात है कि मीर लतीफ़ ने भी उसी तरीके से जो उनका ट्रेंड है ना मिर्ज़ाइयों का, एक बात खाम का कर देनी, दावा कर देना और उसकी कोई दलील नहीं है, और 5 हफ्ते से सारी मिर्ज़ाई कौम जो है लगी हुई है उस झूठ को सच साबित करने के लिए, लेकिन जितनी ज़्यादा उस झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं उतनी ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई में धंसते जा रहे हैं। ये है इनकी हकीकत जी। ये बात ठीक है कि बहुत सारे लोग उनको अपना वो समझते हैं कि उनकी इज्जत है, उनका वो सर का चादर है, लेकिन कुछ लोगों ने सच भी बोला है, और उन्होंने ये तलत मलक ने ये सही बात है कि पहले भी जब उनको कहा गया कि ये मीर साहब हवाला नहीं पेश कर रहे तो तलत मलक साहब ने कहा कि भाई उन्होंने दावा किया हुआ है तो उनको हवाला पेश करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले तलत ज़ोर मलक ने उनकी कुंडी खटखटाई है तो भाई आप हवाला क्यों नहीं पेश करते, आपके पास हवाला नहीं है इसका मतलब है। तो ऐसे बंदे को अप्रिशिएट उतना तो जरूर करना चाहिए। जी तलत मलक साहब ने भी कहा, साकी ने भी यही बात कही है, वो भी जमात अहमदिया का, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको मतलब डिफेंड कर रहे हैं बजाय से कि ये मानने के कि भी नहीं उनके पास हवाला, चलो कोई बशरी कमजोरी से आदमी ने कह दी बात, इतनी सी बात मान लेते तो सारा झगड़ा खत्म हो जाता। 5 हफ्ते से झूठ को सच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं ना सकता, झूठ सच हो नहीं सकता। और आमिर भाई जिस ब्रॉड पे आपको वो बुलाना चाह रहे हैं और बार बार वो इसकी जस्तजू कर रहे हैं कि जी हमारी ब्रॉड पर आए, वो जिस पे ताहिर बैठा होता है और नासिर भट्ट बैठा होता है और राना बैठा होता है, वो एक इंतहाई बदतमीजी वाली ब्रॉड है, और वहाँ पर वो ये चाहते हैं कि आप कोई भी एक बंदा जाए, जैसे मुझे भी उन्होंने एक बार मैं ऊपर गया था तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी रखी हुई थी, आप तक पहुंच गई होगी वो रिकॉर्डिंग भी, कि वो बेसिकली ये मुझे भी उन्होंने एक रिकॉर्डिंग सुनाई एक मुसलमान की, तो मैंने उन्हें कहा देखें बात ये है कि हमारा हर मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, उनका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक यही है कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और वमा कतलूहु वमा सलबूहु और वमा कतलूहु यकीना, इसके बाद हमारी और कोई बात नहीं है। आप अगर ये मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर मैंने उन्हें वो हदीस भी रखी कि अल्लाह पाक के रसूल ने हमें फरमाया है कि आप ना इसकी तकजीब करो ना इसकी तस्दीक करो, बल्कि ये कहो कि हम उस पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह ने हमारी तरफ नाजिल किया है। तो मैंने कहा आप उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं, अगर आपने बाइबल से अकीदा बना लिया है तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमने अगर कुरान से अकीदा बनाया है तो आप हमें गलत नहीं कह सकते।
تو وہ وہاں پر پھر ناصر بٹ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اسٹریٹ فائر شروع کر دیا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو اپنا عقیدہ بچانے کے لیے یہ تو وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جتنی بات کرنی تھی وہ کر لی ہے, مجھے اب آپ اجازت دے دیں. تو آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ ایک نیوٹرل براڈ کے اوپر ہی ساری بات ہو تو وہ ایک اچھی بات ہے. اچھا کل میں وہاں وہ طاہر کو نامی کسی نے براڈ کھولی ہوئی تھی تو کوئی اور بندہ نہیں تھا تو میں بھی گیا, انہوں نے مجھے اٹھا لیا. تو کہتے جی طارق چوہان صاحب, ہاں جی بات کر رہے ہیں, آپ کو عامر ندیر نے بھیجا ہے. میں نے کہا نہیں آپ بات کر رہے ہیں تو میں آیا ہوں کہ ہاں ہم اس پہ بات کریں. جی ہاں بتائیں حوالے کی. تو میں نے کہا کہ اس میں کیا بتانا ہے, عامر ندیر صاحب نے صاف کہا ہے کہ جی یہ حوالہ دیں تو بات ختم ہو جائے گی. نہیں آپ عامر ندیر کا وہ اپنا عقیدہ کیوں نہیں بتا رہا. میں نے کہا عقیدے کی تو بات ہی نہیں کوئی ہوئی. تو وہ پھر مجھے گالیاں نکالنا شروع ہو گئے. تو پھر میں وہاں سے نکل آیا. اصل بات ہے کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے, جو چیلنج دیا گیا ہے وہ صاف الفاظ ہیں بھی, آپ اس کے حساب سے آپ کو 500 یورو کہا گیا ہے. آپ نے کہا ہمارے پاس حوالہ ہے, پیسے جمع کرا دیں, پیسے جمع بھی کرا دیے گئے. پھر آپ حوالہ دے نہیں رہے, 5 ہفتے ہو گئے ہیں. یعنی آپ مان جائیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے. کتنا آسان ہے یہ. لیکن وہ اسی کو جھوٹ بنا رہے ہیں اپنا. نہیں جی عامر ندیر بھاگ گیا, وہ اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا. یہ عامر ندیر نے عقیدے کے متعلق تو چیلنج کیا ہی نہیں, کوئی الفاظ ایسے ہے ہی نہیں ہے. صاف یہ کہا ہے احمد دیدار صاحب کا یہ عقیدہ آپ دکھا دیں. آپ نے خود کہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے, وہ بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہاں کہا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے. وہ نہیں نا آپ دکھا سکتے. بالکل ایسے اب ہمارے سامنے ایک ویڈیو بھی آ گئی جس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ سلیپ پہ ان کو نہیں چڑھایا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو راجہ صاحب پیر صاحب آئے ہیں نیچے, آپ انہیں اٹھا لیں, میں نیچے جاتا ہوں. ایک دفعہ میں بھی گیا تھا, میں نے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ میری گل ایک لکھ لو, میں نے بھی عمر گزاری ہے. جس طرح کا عامر نذیر بندہ ہے نا, تسی ہاتھ جوڑنے نے, پیسے دینے نے, تے وعدہ کرنا ہے کہ آج تو بعد تہاڈی جان چھڑ دے, تسی اس دے پیسے نہیں کھا سکتے کسی صورت بھی. تو وہی بات ہوتی نظر آ رہی ہے. اب ان کے اپنے اگر اس جگہ عامر ندیر ہوتا, اس نے یہ بات کی ہوتی, عامر ندیر نے مان لینا تھا کہ ہاں بھی مجھ سے غلطی ہو گئی. میں ہو جاتی ہے, کوئی بھی معصوم الخطا تو نہیں ہے. نہیں ہم طارق چوہان صاحب ہم غلطی نہیں مانتے, ہم حوالہ ان کے منہ پر مارتے, یہ پڑا ہے حوالہ. ہاں نہیں حوالہ مارتے پہلے بعد میں کوئی بات کہ نہیں ہے, بجائے اس کے کہ آدمی نہ حوالہ ہوتا ہم دعوی نہیں کرتے ہیں, پہلے تحریر جیب میں رکھتے ہیں, حوالہ پڑھتے ہیں, معین الفاظ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ الفاظ ہیں, یہ دعویٰ کرنا ہے ہم نے. حوالہ پہلے پڑھیں, اپنے پاس موجود ہو, پھر آدمی بات کرے, بجائے اس کے 5 ہفتے پھر آدمی رٹکا لگائے کہ جی ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے دینا نہیں ہے. تو یہ ذلت و رسوائی ہوتی ہے نا بس. وہ آپ لیکن یہ تو شروع سے ان کے وراثت میں نا, میں نے آگے مثال دی ہے آپ کو کہ مرزا صاحب نے بھی ایسا ہی دعویٰ کر دیا تھا کہ رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے حدیث کو ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا. خدا کی کرنی 6 مہینے بعد مناظرہ طے پا گیا شیخ بٹالوی سے, انہوں نے یہی سوال کر لیا تھا. مرزا صاحب کو مرزا صاحب نے کہا تھا میرا اتحاد ہے, میں اپنے فعل سے سمجھا ہوں, ان کی تحریر نہیں ہے میرے تو پاس. مرزا صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ میں جس ڈھیر کو چاہوں حدیثوں کو میں صحیح کر دوں, جس کو چاہوں میں رد کر دوں. تو اگر انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے ٹھیک کر دیا, اس میں ایسی کیا بات ہے. تو امیر لطیف کا یہ دعویٰ ہے, اس کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے نا کہ میں حق معدل ہوں. یار مولوی نہیں, میں ਉਹਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਚਬਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਤੀਫ ਦਾ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ. ਹਾਂ ਵਹੀ ਨਾ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ہے. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. عامر بھائی گل انجے نا, اصول نہیں بدلتے ہوندے. بندہ میر لطیف ہوئے یا مرزا صاحب ہون, جس مطالبے تے میر لطیف صاحب کو حوالہ ہوندا ہے نہیں مہمان, تم بے موقع ایک بات کرتے ہو, ہم بات کر ہی نہیں رہے. ہم یہاں پہ میر لطیف کی بات ہو رہی ہے, بس وہیں تک رہو. جتھے ہے اتھے ہی رہن دو, جتھے گاٹی پئی ہے پئی رہن دے مولوی. عامر بھائی آج بھی جو سلیب کی تصاویر ہوتی ہیں اس پر جو مجسمہ ہوتا ہے وہ کپڑوں کے بغیر ہوتا ہے, صرف آدھے سطر پر انہوں نے کپڑا ڈالا ہوا ہے, وہ بھی بعد میں تصویر میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ بات اصولاً نہیں ہوتا, یہ اصولاً نہیں ہوتا, ان میں لاگو نہیں ہے, یہ تو تصویر پر ڈالا گیا ہے. بالکل یہ تصویر پر ڈالا گیا. ਅੱਗੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੁੜਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ. ਉਹ ਯੂਸਫੀ ਨੇ ਬੜੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ.
ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਬੜਾ ਗੁਜਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਮਰਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।